everyone, so today is a very special day for us, entire team Yourpedia, which is mentoring students for a very important exam of a patent examiner patent and design by Controller General of Patent, Design and Trademarking by Ministry of Commerce and Industry. That is a very important exam, and as you know, Yourpedia has launched a very effective module. Knowing well that the time duration for this exam is very limited. 3rd September को we have prelim and 1st October को we have mains, and lakhs of students are going to write this exam. और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये हर साल नहीं आती. 2015 में एग्जाम था, 2018 में एग्जाम था, and now it is 2023 and number of seats are fairly good, so all of you stand very good chance. Today's session is about the detailed strategy. There are some mentors here. Some mentors could not join, and but the mentors who are here, they will provide you detailed strategy about this exam. And the person behind this module, who has designed this entire module and who is very effectively running this entire module for all of you, is Gurinder sir. So Gurinder sir, because exam का duration बहुत कम है और subjects बहुत ज़्यादा हैं, तो students को बहुत ज़्यादा apprehension है, and you know the best कि students की क्या queries हैं, what kind of questions they have, and whether they should prepare or not. So you will please discuss with all of us like how we have designed this module and how we can go forward for this module. So over to you, sir. Yeah. Right, sir. Thank you, sir. So hello everyone. So today we are gathered here, as sir mentioned about these things. So we are gathered here with the team of non-technical who is going to cover this exam. For the descriptive, we are having the separate team. For that, we will take the separate session for that, how you have to cover that descriptive part. So we are with us the team of the non-technical. Some mentors are missing here, although that part we will also cover in this session only. So we are with us Tyagi sir. With my very first question will be to the Tyagi sir, who is very famous for this mathematics part, quantitative aptitude he is taking, and for this exam also he is taking the same part, quantitative aptitude and this elementary mathematics. So my first question, Tyagi sir, to you is that as sir mentioned that we are having the 2 exam already conducted in 2015 and 18. So you have done the analysis of that. So what is your take on that? What analysis you have done and how you are going to prepare students for this exam? Before going into the detail of non-tech part, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो, बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, बट सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा होता है? जिसकी एग्जाम डेट क्लियर हो. ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी चीज ये है कि सब कुछ आपको क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है, एग्जाम की डेट आपको पता है. तो उसमें क्या होता है कि आप हाईली मोटिवेटेड होके और अपने एक एक दिन का हिसाब अच्छे तरीके से रख के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो. जिन्होंने जो पहले से ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना है. और जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है, उसको देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ पहले तैयारी की होगी बट रिसेंटली किसी जॉब में चले गए होंगे, ठीक है ना, बट अभी वो एलिजिबल है क्योंकि एज लिमिट भी इसमें है अच्छी खासी, ठीक है ना. तो ऐसे बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं, अभी कहीं जॉब कर रहे होंगे, वो भी चीजें रिकॉल कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालें अपना, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं, टफ नहीं है. ठीक है, बस आपको क्या है कि पॉजिटिव रहना है और डेली मतलब अपना एक रूटीन बना के पढ़ना है. सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो जाओ कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इजीली आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो. मतलब टफ क्वेश्चन होते तो थोड़ा लगेगा बच्चे को कि मैं भूल गया हूं, कैसे मेरे कंसेप्ट रिकॉल होंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर पहले पढ़ा हुआ है, रिफ्रेशमेंट करना है, तो दोनों के लिए फायदेमंद है. ठीक है, अब जो पहला है स्टेज है हमारा प्रीलिम्स का, जो मतलब एक तरीके से कट ऑफ क्लियर करना है, बट वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी सीटें तो जो आप क्वालिफाई करेंगे मेन के लिए वो भी लिमिटेड ही रहेंगी. ठीक है ना. तो मेरा जो सेक्शन है एप्टीट्यूड वाला, उसमें वो दोनों में है, प्रीलिम्स में भी है और आपका मेंस में भी आएगा, दोनों में. ठीक है, प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में 20 क्वेश्चंस आएंगे. टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. एक बार बस पढ़ना है आपको. ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन डाल दिया, लाइन चार्ट का क्वेश्चन डाला, ठीक है ना, या उसके अंदर जैसे जो आपका ये वाला पार्ट है मेंस वाला, उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है. एक बार पढ़ोगे सब कुछ स्मूथली याद होता चला जाएगा. ठीक है, तो आराम से कर सकते हो क्लियर इन दोनों एग्जाम को आप. ठीक है, अब जो मेरी क्लासेस होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस हम डेली लेते हैं, तो जो टाइम हमने लिया हुआ है, जैसे प्रीलिम्स से पहले सारा सिलेबस इजीली कंप्लीट हो सकता है. ठीक है ना, डेली ही क्लासेस की हम चला रहे हैं, तो एक दिन में एक टॉपिक आराम से बच्चा कर सकता है. और एक सेट है मतलब 30 से 50 क्वेश्चंस का, जिसमें ऑल वैरायटीज कवर हो जाती हैं. अगर वो क्वेश्चन सारे कर लिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपने नोट कर लिए, याद कर लिए, तो इजीली आपका टॉपिक रेडी हो जाता है. ठीक है ना.
और जो आपका दूसरा सेक्शन आएगा मेंस वाला, उसमें भी टॉपिक कुछ तो कॉमन वही रहेंगे एप्टीट्यूड वाले, बट ज्यादा फोकस उसमें आपका जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा उसमें आ रहे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो सारा कंबाइन करके हम कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, और इजीली हो सकता है। मतलब अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करो, और जो क्वेश्चंस मैं अपनी क्लास में, जैसे बच्चों को एक क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें ऑल वैरायटी क्वेश्चंस की कवर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट यूज फॉर्मूला सब कुछ के अंदर आ जाते हैं। उसको अगर पूरे को कर लिया बच्चे ने, कोई क्वेश्चन उसका मिस नहीं होगा एग्जाम में। अच्छा सर, इसमें काफी स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर अबाउट दिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सो व्हाट इज दैट? देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी आप सभी पढ़ते हो, 10th की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, वहां तक हम मान के चल सकते हैं कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वही माना जाता है। तो उसमें आपको सारी बेसिक चीजें रिवाइज करनी होंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई सिंबल्स है क्वेश्चन पूछ लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर उसके अंदर भी हमारा स्टैटिस्टिक्स आता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज आती हैं, तो ये सारा ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, जैसे वो सारे नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर करेंगे। अगर उनको अच्छे तरीके से आपने एक बार कर लिया, क्वेश्चन सारे एग्जाम में सोल्व हो सकते हैं इजीली। Means in a nutshell, you are saying that whatever you are going to cover, if any student completes that, he can easily cover maximum marks out of your topic. Definitely. Now, my next question to Shubha ma'am, with very smiling face, is very famous for his smile. So, Shubha ma'am has always covered that English part. So, ma'am, what is your opinion on this English part? That how you are going to cover that, and what your analysis you have done on that? What are the important topics for this English? सर सी एवरी एग्जाम ऑफ इंग्लिश ना, अगर मैं इंग्लिश के और भी एग्जाम्स, हमने पहले एटीसी का एग्जाम था, सब कुछ कवर किया है, तो 5-6 टॉपिक्स आर फेवरेट ऑफ एवरी एग्जामिनर। इफ आई से स्पॉटिंग एरर्स, अगर आप देखोगे, दैट इज बीइंग आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, और उसके लिए वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड अ लेक्चर आल्सो। मैराथन हमेशा चली है, एंड मेनी स्टूडेंट्स, उनका फीडबैक आया कि वो 101 रूल्स है, अगर आप वो सेट ऑफ रूल्स को प्रिपेयर कर लोगे, वंस यू गो इट आउट, जो लगती है ना इंग्लिश, इट इज अ बिग, यू आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, हाफ ऑफ योर अफ्रेड गोज, यू कैन से इट इज रिमूव फ्रॉम योर माइंडसेट एंड ऑल, कि वो अगर हम 100 ट्रिक्स को अच्छे से करते हैं, एंड दिस इज अ वे आई स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ योर्स। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी आता है, आरसी आ गया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। वी प्रैक्टिस इट इन द क्लास ऑल्सो, किस तरह से करना है आपको आरसी को, अटेम्प्ट कैसे करना है, एंड प्लस यू हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस। अगर आप हर दिन एक आरसी अटेम्प्ट करते हो, तो आपका बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, यू गेट यूज्ड टू इट, कि कितने टाइम में मैं कितना क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। और 5 मार्क्स की आरसी आती है ये, मतलब तो इट इज अ बिग नंबर फॉर यू। टोटल 15 मार्क्स है, तो अगर आप देखोगे तो आरसी के गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर। देन इट इज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी जो है प्रीवियस ईयर इन 2015 ऑल्सो एंड 18 ऑल्सो 8 मार्क्स की आई थी। तो वोकैबुलरी सेक्शन, और ये नहीं हो सकता कि एक दिन में आप वोकैबुलरी कवर कर लो, यू हैव टू डू सम सेट ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। तो दैट इज व्हाट आई डू इन माय लाइफ क्लासेस ऑल्सो। बिफोर आई स्टार्ट इनिशिएट अ टॉपिक, आई मेक इट अ रूल कि आप 15-20 मिनट्स वोकैबुलरी रिवाइज करो ही करो, एंड यू हैव टू रिमेंबर द रूल 1-3, दैट इज जो फर्स्ट डे पढ़ा है वो थर्ड डे रिवाइज करना ही करना है, अदरवाइज इट विल बी, यू कैन से, आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे इन फाइनल एग्जाम्स। तो हम एक एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं वोकैबुलरी की, दैट इज मस्ट, व्हिच आई से टू माय एवरी स्टूडेंट। वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पॉटिंग एरर्स। अपार्ट फ्रॉम इट आपका आता है, यू कैन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम जूनियर क्लासेस में सब पढ़ के आए हैं, बट अभी रिवाइज नहीं करते हैं, एंड फॉर दैट इट इज ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। वो उसमें ट्रिक्स का काम आ जाता है। So you have to revise the rules, nouns pronouns सबने पढ़े हुए हैं, बट इस टाइम पे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं आएगा। तो ये चीज आ जाती है। वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी जो जनरल इंग्लिश में आएंगे, उसमें आपको सिर्फ प्रेपोजिशन, कंजक्शन और टेंसेस करना है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू गो फॉर एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, मेंस के लिए हम सारे के सारे जो भी 7 आपके आते हैं, वो हम सारे कवर करेंगे, तो वी विल गो विद दैट ऑल्सो। एंड लास्ट एक टॉपिक था, दैट इज योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे हम बात करते, तो वी सेज दैट मोहन इज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। हम बोलते हैं ये सेंटेंस ठीक है, एंड दे अंडरलाइन द सेंटेंस लीडिंग। लीडिंग तो लीडर करता है ना, दैट इज नॉट अ सेंटेंस कि आप उसको फ्रेम करोगे। तो इट इज मोहन इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ऐसे करके सेंटेंस आए। तो आई वोंट से इट इज अ हार्ड वन, इट इज वेरी इजी वन। 5-6 टॉपिक्स है, और उसको हमने हर दिन का एक, जैसे सर ने बोला, एक आप प्रॉपर वो कर लो, टाइम टेबल बना लो, और उसमें वी हैव टू प्लान अ स्ट्रैटेजी कि कैसे करना है। और लाइफ क्लासेस में दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। सो आई थिंक इट्स अ इजी वन,
तो इसको हवा नहीं बनाना है, बट या यू हैव टू डू इट इन अ स्मार्ट वे। ना द वे यू हैव एक्सप्लेन, मेरे को लगता है कि अब जो इंजीनियर जो डरते हैं ना इंग्लिश से, वो डर निकल जाएगा। तो इंजीनियर आपसे से अगर डर English- निकालना है, दैट तो- इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट इज हार्ड, बट हमारे लेक्चर से इजी हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। So my now new face you are watching that Amita ma'am, although इनका 2 वीडियोस आ चुके हैं YouTube के ऊपर, so she is going to cover that current affairs part। मैम बहुत स्टूडेंट्स जो क्वेरी कर रहे हैं कि मैम जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज कंफ्यूज्ड है कि कैसे करना है मेरे को इसको कवर, क्या मेरे को जनरल स्टडी सारा करना है, हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, मेरे को क्या सारा करना है, या मेरे को कुछ स्टैटिक पार्ट करना है, या मेरे को करंट अफेयर पार्ट करना है। एंड यू आर गोइंग टू आई थिंक कवर द करंट अफेयर पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सो एंड यू हैव आल्सो डन द एनालिसिस ऑफ 15 एंड 18, और जो रेगुलरली रिपीट भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक एग्जाम होता है वी कैन नॉट मेक एनी एनालिसिस, 2 एग्जाम है तो दोनों में उन्होंने सेम वे में पूछा है। सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक द करंट अफेयर फॉर दैट? ओके सर, मेरी स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मोस्टली इंजीनियर्स के मन में क्या होता है कि वो टेक्निकल फील्ड में इतना घुसे होते हैं कि कहीं ना कहीं करंट इवेंट से थोड़ा कट होते हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर्स इज अ वेरी वेरी लाइक इनफाइनाइट ओशन होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि उनके लिए ये टास्क को ईजी बनाना है। करंट अफेयर्स मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर हम इररेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है तो वो हमें ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। लेकिन अगर हम एग्जाम की डिमांड को समझते हुए वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हम एक राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे। सर मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन पेपर उन्हीं का निकलता है जो राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो कोई अंत नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसीलिए जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बनाया है कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी करंट अफेयर्स के लिए, तो उसमें मैंने PYQ एनालिसिस किया 2018 एंड 15 का। तो उसमें कुछ जो थीम्स थी वो रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट थीम्स रिपीट होती हैं हमेशा। तो उन थीम्स को हमने आइडेंटिफाई किया। जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की बात करें तो इसरो के मिशन के बारे में पूछा था कि मैन्ड मिशन कौन सा होगा। अब जैसे रिसेंटली चंद्रयान हुआ है तो उस पर पूछ सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इस बार पूछ लेंगे वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया। तो इस तरह से हमें पैरेलल्स ड्रॉ करने हैं कि पहले क्या पूछा था और उससे रिलेटेड अब क्या हुआ है और उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो समझ सकते हैं। तो उसी डायरेक्शन में हम अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। ऑलरेडी जैसे हमने मॉड्यूल भी लॉन्च किया है कि पहले हम जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, फिर जुलाई तक के हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। एंड 6 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सभी को करने ही है, मतलब दोज आर मस्ट। तो इतने हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा एग्जाम की नीड्स को केटर करते हुए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रैंडम पढ़ा रहे हैं, तो उससे तो बच्चों को फायदा नहीं होगा। क्योंकि एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स है प्रीलिम्स में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड बच्चे भागते हैं इस पोर्शन से कि छोड़ो इसको रहने देते हैं, मैथ्स पढ़ के हो जाएगा, बट ये पोर्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं है। राइट डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाओगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। बहुत डुएबल पेपर है, बहुत बेसिक चीजें पूछी हुई थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी थे कुछ कुछ, हाँ कुछ 2-4 होते हैं जो बाउंसर बिल्कुल सर के ऊपर से गए, वो तो हर पेपर में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें उन 2-4 को पकड़ना है, जो बाकी 25-26 आए हैं हम उनको टारगेट करेंगे क्योंकि वो इजी क्वेश्चन थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ पेपर को फॉलो करेंगे। सर ये मेरा एक मैम जो आपने अभी बातें बोली उससे, मैं वैसे तो करंट अफेयर्स का टीचर नहीं हूँ भाई, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम भी अपने टीचरों की वीडियो देख लेते हैं थोड़ा अपडेट रहने के लिए। तो मेरे दिमाग में 1-2 क्वेश्चन आए हैं। जैसे अभी फ्रांस में एक परेड हुई है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, जी सर। तो क्या वो क्वेश्चन बन सकता है? सर वो उस परेड का नाम क्या है? वो बड़ी पॉपुलर, हाँ बेस्टल परेड है सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब बनने के चांस रहते हैं। या कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं। जैसे मान लिया भारत रत्न हम इंडिया में किसी फॉरेनर को देते हैं, उस तरीके से वहाँ के जो सबसे बड़े अवार्ड है, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके हिसाब से? सर क्वेश्चन पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सर परेड से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो क्योंकि उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स कुछ हुए हैं पूरे साल में और जो पहले पूछे गए हैं। सर अवार्ड से जैसे इंडिया का जो अवार्ड है, सपोज दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, उस पर एक क्वेश्चन आया था पिछले साल।
तो वो पूछ सकते हैं। सर जैसे स्पोर्ट्स में ये अवार्ड किसको मिला, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए पिछले साल हम सब ने न्यूज़ देखी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो गए कि हमें उन्होंने जैसे देश को रिप्रेजेंट किया, तो वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट था, तो हमें वो पता होना चाहिए। सर जैसे आप जो बोल रहे हो उससे लिंक्ड है, जैसे मोदी जी अभी यूएस विजिट पे थे इंटरनेशनल योगा डे पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएस के वहां पे गए थे तो क्या अग्रीमेंट साइन हुआ यूएस और इंडिया के बीच में। सो वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एमओयू से रिलेटेड, अग्रीमेंट से रिलेटेड। ओके ठीक है, थैंक यू। So my next team member is Jigyasa ma'am. So ma'am, you are going to cover that physics part and this chemistry Bio part, part. and Sir, sorry, bio part and physics bio part. sorry bio part and physics part, Yes, sir. and the general knowledge part. So how you are going to cover that thing, because current affair Sir. ma'am is doing, and how you are going to cover that general, because that is also very wide field. यस सर, एज वी सी द पास्ट पेपर राइट, तो वहां पे हमने क्या देखा, जियोग्राफी पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड जो जियोग्राफी पार्ट का आपका एक पार्ट आता है सोलर सिस्टम, एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर फिजिक्स राइट। सो हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा को रिलेट करके पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक बेसिकली एज जो मैं टीच कर रही हूँ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, एंड मैं उसको करंट अफेयर के साथ लिंक कर रही हूँ। साइंस एंड टेक पार्ट जो आ रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स राइट, सो मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बच्चे वहां डर जाएंगे कि हाँ हमें तो बायो नहीं आता, हाउ कैन वी कवर ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज द थिंग इज कि जो आपका बायो पार्ट है वो आया है आपका +1 +2 से। अगर आप एनालाइज करोगे वहां पे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू, जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको कैसे समझाना है, लाइक सपोज जैसे वी आर ह्यूमंस राइट, सो स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज, यू नो अबाउट इट, स्टडी ऑफ ह्यूमन, so yeah, anthropology right, such type of questions are going to ask. Next one, आपकी species क्या है, species of man, because these are mostly in your current affairs. So जो भी examiner होता है उसका mindset क्या था, हमें उसके mindset से सोचना है। So first of all वो ये चीज देखेगा क्योंकि उसके माइंड में पहले क्लियर है कि इंजीनियर्स के लिए एग्जाम है, he is not so much related to biology, ठीक है। तो वो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन इस बेस से बनाएगा कि जो आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो बायो का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड। अदरवाइज आपने इंजीनियरिंग एग्जाम पे वहां पे हार्डली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग जो आपकी विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, बट इन दिस एग्जाम एज आई सॉ जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें बायो के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट इज रिगार्डिंग योर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका जो मेन पार्ट क्या होता है, फादर कौन होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, बिकॉज एज वी नो जैसे इंजीनियरिंग में डिफरेंट फील्ड है वैसे बायो में भी डिफरेंट फील्ड है। सो ये सारी चीजें बायो में कवर होंगी, सो दैट इन इजी वे आई कैन कोरिलेट दोज थिंग्स। सेकंड थिंग फिजिक्स, फिजिक्स के हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आपका क्वेश्चन आया था, एंड आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में कोई भी ब्रांच होगा वहां पे फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उस लेवल तक का फिजिक्स इज एनफ, क्योंकि अगर आप आगे डिटेल में जाओगे, डिटेल में लाइक आपको पता है इसमें एक पोस्ट आपकी फिजिक्स के लिए भी है, सो दैट्स वाई ये इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस वास्ट किया हुआ है, ज्यादा डीप रखा है फिजिक्स। बायो किसी ने नहीं पढ़ा इसीलिए +2 लेवल का रखा है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो करंट अफेयर है जनरल नॉलेज इज लाइक अ समंदर राइट, ओशियन है, ठीक है, उसमें आप कोई भी पार्ट निकालोगे, द थिंग इज हम पीछे पेपर तो एनालाइज करेंगे, बट द थिंग इज विद देम हम एग्जामिनर ऑब्वियसली आपका जो माइंड सेट है, पैटर्न है एग्जामिनर का, हम नहीं जज कर सकते, तो इसीलिए हमें सारे टॉपिक तो कवर करने हैं बट इन अ इजी वे। हमने लास्ट पेपर में ये एनालाइज किया कि उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं एज मैम सेट राइट। सो हमें क्या करना है कि जनरल स्टडी का पार्ट जो है जनरल नॉलेज के पार्ट के साथ, सॉरी जो जनरल आपका करंट अफेयर है उसको जनरल नॉलेज के पार्ट के साथ इतना कोरिलेट करना है सो दैट वो इजी आपको समझ भी आ जाए और इतने कम टाइम में भी आ जाए, सो दैट यू कैन, बिकॉज जो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है आपका वो आप सबने सुना होता है, आते जाते रास्तों में पता होता है राइट। सो इस वजह से लाइक वो हमारे डे टू डे लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। साइंस फिजिक्स आपका लाइक बायो पार्ट है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी हैव ऑल दोज थिंग्स इनसाइड अस राइट, we have biological features, we are walking and all, it is a part of physics as you all know that. It means you're relating the biology with the engineering. Yes, मतलब definitely, obviously we are human. It means कि घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों को, बिल्कुल बायोलॉजी भी से नहीं है, बिल्कुल भी sir. नहीं है, तो इंजीनियरिंग के तरीके से हमने Okay, बायो ठीक को है, पढ़ा। हमें पता है शुगर की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, इंसुलिन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था राइट। हमें ये सारी चीजें हमारी बॉडी के साथ होती है, आपको पता है जो हमारा लाइक जैसे हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक मैक्सिमम लोग सुनते हैं, तो किसके साथ रिलेट करता है, कार्डियोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ योर
बायोलॉजी बेसिकली। सो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चंस आपको प्लस 2 लेवल तक के आएंगे और उसमें भी इतना डीपली नहीं आएगा कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ। बिल्कुल बेसिक चीजें आएंगी और वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, हार्डली बहुत कम टाइम में कवर हो जाएंगे और बहुत इजी होंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग बायोलॉजी पार्ट एंड योर फिजिक्स पार्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो व्यूअर्स, बायोलॉजी के लिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जिज्ञासा मैम इज देयर, क्योंकि फिजिक्स आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑल यू आर इंजीनियर्स, तो फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा है। बायोलॉजी का एक दिमाग में होता है, तो मैम इज गोइंग टू टेक दैट थिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर। नाउ नेक्स्ट इज रमन सर, ही इज अवर मेंटर फॉर द केमिस्ट्री. So you must have watched him in the taking the these interviews, in the mock interviews. So now he is going to cover that chemistry part. So sir, आप इसको कैसे cover करेंगे chemistry को? Sir, thank you, sir, for the chemistry part. As we have seen this complete analysis of the syllabus, the syllabus is very wide and very vast because all the topics of the BSc level plus 1 and plus 2 we have to cover. But what we have to study and what we have to do the specific approach, because the level is not that as much in the paper as the syllabus is there. So we will specify and we will focus on the specific topics and the matter also. The matter we will provide to the students, that will be specific matter. The students not have to go for any books. If he study our matter and he will crack our exam. From the analysis from the last year's papers, the level was not very high. Student just have to cover all the topics. He cannot leave any topic, because in 2015 the topics were covered that was not in the 2018. In 2018 the topics were different, such as quantum numbers was there, chemical bonding was there. From organic chemistry also there was question from the structures, different type of bonds that were formed. So we will provide the students the concise matter and concise syllabus which he has to focus, by not going deep into the concepts, because of the time period for the examination is very short. So the student cannot study that concepts in deep. Student has studied the concepts in the lower classes, but he has to be revised and by the specific. So we will give that matter so he can crack the exam. In the 40-45 days we can easily cover that. Yes, We are going to cover that, the yes, chemistry part. it will be feasible. It will be feasible. So next very important question to Vijender sir, you is that the IPR part, the intellectual property rights, जो कि prelims में भी उसका weightage है, इसका mains में भी है. हमने जो पिछला syllabus लिखा सर 2018 में, और आपने उसमें एग्जाम में भी देखा कि उसमें I think it was not mentioned in the syllabus, और ये एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे. लेकिन इस बार सर इन्होंने बहुत ज्यादा weightage भी उसको दिया है. So उसको आप कैसे cover करने वाले हैं सर? Yeah, so I think IPR, intellectual property right, can become the game changer, because it was not there in the previous exams. 15 and 18 it was not there, though it is a part of engineering subsidies exams. Those of you who go for that exam, they know that patent is a very important part, especially for technocrats, because you need to patent your technologies and inventions. So it is indeed a very important part, and also because that is what exactly the job is. You are going to get a job of examiner, patent and design, and this syllabus should be there. In fact, I was surprised when I saw 2015 and 18 exam previous year papers, and I was surprised to see इन दोनों साल दो एग्जाम्स थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट डज नॉट जस्टिफाई द पोस्ट इटसेल्फ, क्योंकि अगर जॉब आपके एग्जामिनर पेटेंट डिजाइन की है तो उसमें से काफी क्वेश्चन आने चाहिए, and this time they have corrected that particular mistake, if I can call that. और इस बार preliminary में they are going to ask you 15 question from this part, and mains में paper 1 में they are going to ask you 20 question from this. The good thing is like IPR का syllabus Gurinder sir is very precise, though they have they have mentioned the syllabus जो थोड़ा सा generic है. They have given that syllabus will be terms related to intellectual property rights, and some word intellectual property organization, treaties, and some kind of agreements they have mentioned. Syllabus में इतना सा mentioned है. When you go in detail, when you go see the website of Controller General of Patent, जब आप उनकी website देखेंगे कि ये लोग क्या काम करते हैं और examiner patent and design का काम क्या होता है, and you people must have seen the videos we published when we interacted with the officers working in this department. तो जो इनका काम होता है उस काम से रिलेटेड जो आपका आईपीआर से नॉलेज है, दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, दैट इज व्हाट द पेटेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया इज. उसका अमेंडमेंट इन 2005, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अभी जो आपको कोविड में हुआ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जेनरिक ड्रग्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपल्सरी लाइसेंसिंग, एंड दैट इज व्हाट द एग्जैक्टली फाइट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग ऑन. WTO आया 2005 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2005 में WTO आने के बाद ट्रिप्स आया, और ट्रिप्स के बाद हमारे लॉस चेंज हुए. तो मेरे को लगता है कि ये जितने भी टॉपिक्स आपके IPR में आएंगे, दे आर रिलेटेड टू हाउ पेटेंटिंग एज अ फील्ड इवॉल्व्ड इन इंडिया. और ये जो हमारा कंट्रोलर जनरल का मेन डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसका जो मेन काम है ना उसी से रिलेटेड है, और वही टॉपिक्स हमें फोकस करने चाहिए. तो हम लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड अवर 3 वीडियोस ऑन पेटेंट. वो तीनों वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है हाउ वी आर गोइंग टू इवॉल्व. नटशेल में मैंने इसको पूरा 20 आवर्स का एक बनाया हुआ है मॉड्यूल, और मेरे को लगता है 20 आवर्स का डोमेन में से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अगर वो रैशनल पेपर है, और उसके बाहर आ गया तो ब्लेम मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, पेपर सेटर पे लूंगा. इट इज नॉट रैशनल पेपर देन. सो इफ इट इज रैशनल पेपर दे शुड आस्क व्हाट वी टीच, क्योंकि वही सारे के सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है. To summarize, I think they should ask you question from WIPO, patent acts, then cyber infringements, IPRs, copyright acts, competition act, TRIPS, WTO, वहीं से उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, and that is what we can prepare in 20 hours, and that will Gurvind sir will provide them the notes, and that will be more than sufficient. Right, sir. My next question to you only, sir, and again, and it's a very generic question. As the age limit is 35 for Yes. general students, so many students are calling me. I'm sir 2009 pass out, I'm 2010 pass out, 2011. So I'm having so much gap. I'm not in touch with the technical part. So what is your advice to them? How they go with this thing? Yeah, so I don't know how many of you watch cricket match. Cricket में 3 फॉर्मेट होते हैं. गुरुजी सर, you are fan of cricket, you play cricket. So एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे होता है, 2020 होता है. 2020 is 20 overs. टेस्ट मैच में there is no limit of the number of overs if I'm not wrong, and वनडे में 50 overs होते हैं. तीनों पैटर्न में स्कोर सेम किया जा सकता है, you know that. 2020 में भी people hit more than 200, और जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था उसमें 200 से कम मार्क हमारा स्कोर आया था. यू अंडरस्टैंड? Yes, yes. अब ये मेंटल ब्लॉक है. ये मेंटल ब्लॉक है कि साहब हमें 1 साल मिलेगा, देन वी कैन हिट गुड स्कोर. इट इज अ मेंटल ब्लॉक. आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड इज माय कन्विक्शन एज अ टीचर आल्सो, that any exam if you want to crack, you need only commitment and dedication, not time. टाइम तो तुम फिट कर लेते हो उसके अंदर, और अगर ये 1 मंथ का टाइम या 2 मंथ का टाइम मिला है तो ये सबको उतना ही मिला है. एंड एज फार एज द एज इज कंसर्न कि मेरा एज इतना हो गया है, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम एंड ऑल, दैट अगेन इज अ मेंटल ब्लॉक ओनली. अगर आप 32 इयर्स के हो, आपने PhD कर रखा है, या PhD के स्टूडेंट हो आप, यू आर इन द डिप्रेसोजेनिक फेज एंड यू थिंक दैट हाउ कैन आई गेट इनटू द जॉब, अपने आप को 3-4 मंथ दो पूरी मोटिवेशन के साथ, assuming that you will crack this exam, and there's something which is called law of attraction. So if you believe that you can crack this exam, you will crack this exam. उस mentality के साथ अपना 100% दो, and I'm very sure you will crack this exam. Whether you are of 21 years age, or you are 26 years, or you are in government job, or in a private job, or you are doing PhD in some lab, हर स्टूडेंट जो 4 मंथ एफर्ट लगाएगा गुरुंदर सर, वो इस एग्जाम को निकाल सकता है. मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये ओनली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर नहीं. अदरवाइज जो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो PSU निकालते हैं, सिविल सर्विसेज भी निकालते हैं, और जो घर में बैठे हुए 5-5 साल उनका भी एग्जाम नहीं निकलता. सो इट इज नॉट दैट यू स्टार्ट पुटिंग कंस्ट्रेंट ऑन यू. आपको सिंपली ये देखना है कि साहब मेरे को एग्जाम निकालना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू. बाकी कुछ मत सोचो यार, एज का क्राइटेरिया मत सोचो, डोंट थिंक कि मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे पास टाइम अभी कम है. दीज ऑल आर एक्सक्यूजेज, एंड प्लीज रिमूव दीज एक्सक्यूजेज. आपको जॉब लेनी है, भिड़ जाओ, एफर्ट लगाओ, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन क्रैक दिस एग्जाम. एंड दैट इज वेयर आई थिंक दिस मॉड्यूल ऑफ योरपीडिया स्टेप्स इन. हम लोगों ने इसको इतना डेडिकेटेड और कमिटमेंट के साथ इसको बनाया है, और मेरे को लगता है इसको अगर आप ढंग से करेंगे तो आई थिंक यू कैन क्रैक दिस एग्जाम. हाँ, कंटेंट, क्वालिटी, टीचिंग वो हमारा काम, कमिटमेंट, एफर्ट लगाना वो आपका काम. पॉजिटिव हो जाओ, मेंटर्स आल्सो, यू आल्सो, एंड वी कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ये किया जा सकता है, नथिंग टू वरी. Thank you, sir. Next important question, sir. So many students are again asking me, sir, टाइम है प्रीलिम्स के लिए 1.5 months, मेंस के लिए 1 month, पता नहीं मेरे को कैसे करना है इसको. प्रीलिम्स के साथ में मैं मेंस करके चलूं या डिस्क्रिप्टिव बाद में करें,
So how they prepare this thing? Yes. How they prepare this? Yeah, I tell you the strategy which people, students who crack the exam and student who fail the exam, उन दोनों में difference बताता हूँ. The students who fail the exam, they keep on waiting for some hypothetical situation. I don't know what. एग्जाम निकल चुका है, फॉर्म्स निकल चुके हैं, डेट्स निकल चुकी हैं, 3 सितंबर, 1 अक्टूबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर, डेट सारी निकल चुकी हैं. तो जो स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब मेरे को इसमें जॉब लेनी है, आई वांट टू गेट द जॉब, दैट स्टूडेंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड वो उसी तरीके से तैयारी कर रहा है. और बाकी स्टूडेंट्स जो अभी तक सोच रहे हैं फॉर्म भरें कि ना भरें, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तैयारी करें कि ना करें, उनका नहीं निकलेगा. आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली. सो यू नीड टू बिलीव, दैट इज द फर्स्ट स्टेज. तैयारी करना सेकंड आता है. पहले आता है बिलीव करना कि भाई साहब मैं इस एग्जाम को निकाल लूंगा. अगर उस बिलीव के साथ तुम इसको फॉर्म को भर रहे हो तो भरो, अदरवाइज फॉर्म मत भरो. एंड अगर वो बिलीव है कि मेरे को इसको एग्जाम को निकालना है, क्योंकि मेरे जैसे ही लोग निकालते हैं, सबको एक ही मंथ मिला है और मेरे को इस एग्जाम को निकालने के लिए जो मेहनत करनी है वो मैं करने को तैयार हूं. इफ यू गो विद दैट बिलीफ एंड यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, देन ये आपका एग्जाम निकल जाएगा. नंबर 2, प्रीलिमिनरी 11,000 स्टूडेंट्स का निकलेगा. मेंस और प्रीलिमिनरी के बीच में तुम्हें 15-20 दिन मिलेंगे, दैट्स इट, बिकॉज प्रीलिमिनरी का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट. सो आई स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड नॉट प्रीलिम. एंड कोई भी टॉपिक है, जैसे अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करूं या जीएस या इंग्लिश या अदर मेंटर्स विल आल्सो एग्री विद मी दैट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. So there is a hardly any difference. If you ask me honestly as a mentor of IPR, कि क्या डिफरेंस है सर, प्री और मेंस के प्री में 15 क्वेश्चन आएंगे, मेंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, क्या डिफरेंस है? आंसर इज कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन आएंगे. इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट? सो तैयारी तो सेम है. तो आप ऐसे टॉपिक जिनमें तैयारी 100% सेम है उसको अभी करो, और जो मेंस का एक्सक्लूसिव होगा डिस्क्रिप्टिव, उसको आप चाहे बाद में ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन उसका भी 80% तुम्हें अभी करना पड़ेगा. सो दे हैव डिजाइन्ड द सिलेबस इन सच अ वे दैट प्रीलिमिनरी एंड मेंस आर ओवरलैपिंग, एंड आई बिलीव यू शुड प्रिपेयर कलेक्टिवली फॉर बोथ दिस स्टेजेस. एंड वंस मेंस इज ओवर, देन you have sufficient time for interview, so nothing to bother about interview. Moreover, YourPedia is the dedicated platform to mentor you for that. Nothing to worry for interview. Mains के लिए worry करो और pre और main को इकट्ठे लेके चलो, and that has to be the strategy for you. So thank you, sir. So before I give mic again to Vijendra sir to conclude this session, so last word from you, Tyagi sir. देखो बढ़िया मौका है, थोड़े दिन अगर छुट्टी भी लेनी पड़े, जो वर्किंग में है ना, अगर Yes, कोई yes. 1-2 महीने की छुट्टी लेके लग जाओ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते. ठीक है ना? अभी मान ले 32 साल के हो, 4 साल बाद एग्जाम निकलेगा, आप ओवर हो जाओगे. Yes. तो अभी सारे बच्चे, और जो मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, मान ले कहीं पे बीटेक एमटेक कुछ भी कर रहे हैं, कोई एमटेक वाला पीएचडी वाला, सारे बच्चे कर सकते हैं आराम से. जितना भी टाइम मैक्सिमम निकाल सकते हो निकालो, और अपने एफर्ट करो इसमें. ठीक है ना? क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो सोचो मत ज्यादा. मेरा यही कहना है. Thank you, sir. Final word from your side, sir. Okay, so now I think we conclude the session, friends, and I'm really thankful to entire my team. They are putting a lot of effort here. And YourPedia कोई भी मॉड्यूल जो लॉन्च करता है, you guys know that that is launched after a lot of analysis, and we always claim that we will provide you the best. Prove us wrong, otherwise we will provide you the best. और एग्जाम मैंने आपको बताया, या तो एग्जाम जो हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, या एग्जाम इरेशनल है. आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट एंड यू कैन प्रूव मी रॉन्ग इफ व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम. कई बार एग्जाम हमने यूपीएससी में भी देखा है, पता नहीं कहां से पूछता है. तो जब पता नहीं कहां से पूछेगा तो वो किसी भी स्टूडेंट के लिए सेम इरेशनल है. लेकिन अदरवाइज अगर रैशनल एग्जाम आया, जैसे 15 और 18 में आया था, तो हम जो पढ़ाएंगे उसी में से एग्जाम आएगा. And we are gonna laugh at the end. We are going to have a smile on our faces on the exam day, and you all are going to clear all the stages. And those of you who have enrolled with us for all the 3 stages, preliminary, mains, and interview, I must say that you have belief on you, because the person who is enrolling with us, because you have the option to take up to mains also, but you have taken interview module. I think 80% of the students have taken module of YourPedia with interview. That shows that you have in your mind that you will go to interview. I salute you. I respect that gesture of yours, and that is the commitment which is required. And I'll make sure that I'll prove you correct, your decision correct. I thank all my team member here once again, and we will serve you to our best capacity. So keep watching the videos. 30% of our videos will be visible on YouTube, and the rest module is already available. Those who are going for writing this exam, they can take that module. All the very best. Thank you.